So life skills are very important, and we are having a very renowned expert among us, Dr. Naveen Kumar Mehta. Welcome you, sir. Uh, Dr. Naveen Kumar Mehta is presently working as an associate professor, Department of English, School of Language, Literature and Arts, Sachi University of Buddhist Indic Studies. He is a former dean and head, Department of English, Sachi University. He is having more than 15 years of research, academic and teaching experience. He is UGC NET and SLET qualified as well as triple postgraduate in English literature, education and business management, and was awarded double PhDs in the area of Indian writing and English literature as well as management. He is also conferred with honorary DLIT. He has been honored by the Prime Minister of India and Ministry of HRD of India on account of his meritorious and outstanding academic career. He has been elected as a fellow of RAS, Great Britain and Ireland, in January 2013, and senior member of IEDRC, International Economics Development Research Center. Dr. Mehta has successfully completed courses of professional development and awarded certificates of achievement from MIT, Massachusetts, USA, Harvard University, USA, University of Cambridge, UK, University of Oxford, UK, Imperial College of London, UK, Stanford University, USA, King's College of London, University of London and London Business School, UK, Wharton School of Management, University of Penn, USA, Harvard Business Review, USA, University of Leeds, UK, British Council, UK, Deakin University and Deakin Business School, Australia, etc. He has successfully completed short-term courses, FDPs and workshops from CIEFL, Hyderabad, IIT Bombay, IIT Roorkee, IIT Allahabad, IIM Indore, IIM Bangalore, IITE Gandhinagar, NIT Tiruchirappalli, NIT Uttarakhand, NIT Jalandhar, JNU Delhi, Delhi University, Delhi, BHU Varanasi, University of Mumbai, SP, Pune University, Pune, ICSI New Delhi, ISB Hyderabad, ICPR New Delhi, Pondicherry University, Telangana, Gujarat Technological University, Ahmedabad, University of Madras, Chennai, IGNOU, New Delhi, IIF, Delhi, etc. He is facilitated by then President of Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi, on the occasion of Teachers' Day in the year of 2008 for his excellent teaching skills. He has been awarded an adjunct best paper presenter in the international seminars, conferences of repute. He has authored 150 plus research papers and articles on English literature, language, education and management related themes. He has published 6 books as author, co-author, namely a Handbook of Communication Skill Practices, Elements of Commerce and Management, English Grammar, Communication Skills, Heroines in select novels of Thomas Hardy and Kavita Nidhi, a collection of Hindi poems. We welcome you, sir. Really, you are having a very, very beautiful resume profile. मैंने आज तक इतना बड़ा नहीं पढ़ा है किसी का. Welcome you, sir. It's my pleasure to be at the Oriental University in Indore. Thank you, sir. Now I request Mehta sir to take the lead and start the session. Thank you, sir. Thank you, Mohitji, convener of this very, useful FDP. I am really lucky to be with Oriental University. At the beginning, let me express my sincere gratitude to the Honorable Vice Chancellor of your university, Commander Dr. Anil Singh Ji Rana. Under his able leadership, the university is growing by leaps and bounds. I extend my sincere thanks to Professor Dr. Dhruv Ghai Ji, who is Pro-Vice Chancellor of your university, and an elderly brother-like figure
Professor Dr. Rajendra Jain ji, who is the Dean Research Studies of your university. And last but not the least, the person who is behind but leading this particular FDP on the path of success. And I think is very active, agile. He was in constant touch with me for a few days. And I think he's making all the things possible for you learners. Let me express my sincere gratitude to Dr. Mohit Maheshwarkar ji, who is the HOD of Mechanical and convener of this particular program. I also extend my sincere thanks Professor S.N. Dubey ji, co-convener, Professor Upadhyay ji, who is also co-convener of this program. My dear learners, when you talk about any skill, when you talk about life, we become somewhat very serious. We become somewhat not grave, but there are certain things that float in our mind. And in today's highly competitive world, where you have to face a very stiff competition ahead, I think I congratulate the organizing committee for choosing a wonderful topic, life skills. And you see that in most of the organizations, I'm talking about the academic institutions across the border, national, international, and even global one. The expense scenario may or may not be good. It may be very good at times. It may not be very good at times. But the key or the crux of the story that they want to see their alumni to flourish as entrepreneur. Entrepreneurship, I think it is the buzzword in today's world. And you want to be a successful entrepreneur, you need to develop certain skills. Therefore, I congratulate again the organizing committee for helping you to achieve your dream. You talk about IIM. It may be Ahmedabad, it may be Bangalore, it may be Kolkata, ABC, or even any IITs. They have now a cell, entrepreneurship cell, through which what they want to promote the environment of entrepreneurship among the learners, among the students. So let me begin with a prayer, because I'm going to talk next 50 to 60 minutes. Let me take the permission from Dr. Mohit ji. Should I finish before 1 or I should extend 5 or 4 minutes, if you don't mind? Mohit ji, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Mohit ji is there. Okay, very nice, Dubey ji. So let me begin with this prayer. Since we are going to talk about entrepreneurship in the Indian background, so let me pray to the Almighty for well-being of this world, because we are passing a very difficult, very turbulent phase of life. And this phase will definitely be overcome by our indomitable faith, courage that humanity has got. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvidishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. What does it mean? It means, oh my God, protect us. That means both you and me. May God nourish us both. May we work together with full of energy and vigor. May our study be enlightened and not give rise to any animosity. Om, peace, peace, and peace. Moji, I need your help. I'm going to share my PPT. I don't believe in making a presentation a very lengthy one or extravagant one, because you need something on the screen, and my agenda is very much clear to me. I hope that you should be also aware about the agenda that we have
for today's session. I'm going to begin with a very brief introduction about what do you mean by life skills. Then we will be having 1 minute. Kindly see whether you will be able to see it or not. Sir, are you able to see it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are able to. Very good, very good. Okay. So now, without any formality, let me go ahead. Since you see a person is crossing, and that too without any fear in his mind, this is the life all about. You need to cross yourself from all the difficulties, whatever it may be, physical, mental, psychological, social, economical, whatever it may be. But if you have courage, if you understand the life, if you understand the true meaning of life, and once you will understand, then you will become to know the meaning of your existence. Why am I here on this planet? मैं इस धरती पर क्यों हूं? And to know yourself, I think it is one of the biggest challenge that a person has ever come across in his or her life. And through skills. Now, skills does not mean that you have to go for any training. It may be God's gift, or it may be learned through hard work, or it may be through inheritance. You have certain skills with you. We will discuss all these issues. Everybody has got some skills. And it is a duty to acknowledge those skills. And then you can cross any ocean, whatever it may be. If it is full of difficulties, full of shocks, even you could, overcome all those challenges and would be at the, zenith, at the pinnacle of your success. So what I like to begin with my agenda first. We will be going to discuss about what is the true nature of life skills. Why do we require life skills? And then definitely advantages, how to develop or nurture them. And if skills are there, why to concentrate on the skills that Western world has given us? We have our own very rich culture, heritage, and tradition. Civilization of India is very old. Mind my words, we have given lots to the world, and world is obliged by the Indian civilization. And then entrepreneurs, how they could collaborate skills into their, entrepreneurial works or endeavors. And then we will be having some examples of, live examples of Indian entrepreneurs. Finally, we will reach to the concluding point or culmination stage of our presentation. So let me have an idea, let me give you an idea about the skills that we require in this highly competitive world of 21st century. Am I audible to all? Because I don't like to keep it as Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Because it should be two-way of communication. So you will also remain aware. When I talk about 21st century, I like to ask any one of you, please keep your camera block, but unmute your audio for a while. What are the challenges that you foresee or perceive in 21st century? Anyone? One or two challenges? Only anyone of you. Please. So competition, level Okay, of competition. Very good. Competition is one of them. Any other? So confidence. Very good. It's a challenge or a strength? So it's a challenge, sometime and sometime strength Very good. also. Okay, anyone else? Please ask. Otherwise, I will think that whatever I'm saying, I'm perfect. I'm all right with it. So maybe internal peace of mind and your mental ability. Very good. This is something which you have to correlate. Whatever internal, strength, weaknesses you have, should club it with the outer world.
And it is something which is very psychological in nature. And you need to groom it. You need to develop it at times. Anyone else? Okay. Oriental University students, please come up, speak. If you are not conversant in English, speak in Hindi. Hindi में बोलिए, please. Okay, we will definitely have many opportunity during the lecture that I will try to give you, so you can engage them. So one of the research which was done in Harvard University in 2011, they said that life skill, it is something that has to be transferred, and that has to be transferred or transformed at the very young age. And that age is somewhat 6 to 16 years of age, where we nurture certain things. And this is called hard wiring phase, where you get certain skills through your parents, through your society, through your friends, and those skills later on becomes your strength, or maybe weaknesses at times. You want to get success in modern society, you require 21st century skills. You want to be a global citizen, because from local to global, it's a slogan nowadays that we could hear everywhere. So you want to be a global citizen, you have to have 21st century skills. Why you require it? It's a learning tool, my dear. You can have quality life. Why we are living on this planet? We want to make our life meaningful. We want to serve the society. We are here on this planet for a social cause. Should I switch gear? I should speak in Hindi, Mohitji, if you allow me for a while. Are they able to understand English, or do they have any problem? Should I speak in English? Yes, sir. We are able to understand, sir. But I don't know about a student. I think they can also understand. Should I mix Hindi in between? Yes, sir. That will be better. Okay. So in recent times, you have COVID-19. It's hovering around again and again. It's not gone completely. It has come back with the same force and vigor. So you need to cope up with this pressure, which is there from the outside world. As one of the students, I think Muskan, she told that internal, outer world. So internal, you are not feeling, somewhat anxious, restless, and outside world also, it's not so very much rosy. It's not comfortable. It's not in your comfort zone that you can feel, well, you can feel healthy outside of your home. आप घर के बाहर भी नहीं सोच पा रहे कि मैं अच्छा रह सकता हूँ. So you require a set of skills, it's a bunch of skills, so that you can cope up. You can face all the challenges of life. आप सारी कायनात की सारी मुश्किलों को आराम से हल कर सके. इसलिए लगता है कि ये इस नई दुनिया में, इस नवीन वर्ल्ड में हमको दो चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड की चैलेंजेस. Is it clear to you? So now let's move to the next one. When you talk about the definition of skills as such, because skills you can learn at any point of time, there is no age bar in it. Hardly you are 16 years of age or 20 years of age or 40 plus, 25, 30, whatever age may be. भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती. और स्किल्स को सीखना हमें कोई क्लासरूम में नहीं सिखा सकता, वो तो लाइफ स्किल्स हैं that we learn even outside of our syllabus, curricula से हम बाहर सीख सकते हैं. तो हमारे पास WHO आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफाइन करते हैं स्किल को. वो कहते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ साइकोसोशल कॉम्पिटेंसीज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. ये ग्रुप है एक तरह का. साइकोसोशल है जो आप पहले बात कर रहे थे, इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये आपकी कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करती है. ये इंटरपर्सनल स्किल्स है जब आप दूसरों से घुलते मिलते हैं, सो दैट यू कैन टेक योर डिसीजन. आप अपना निर्णय लें.
You can solve your problems. You can think critically. You can analyze the situation. You have to be creative at times. मैं बात करूँ आप किस तरह क्रिएटिव हो सकते हैं। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा स्कोप देती है, जहां आपको इस तरह के वर्कशॉप मिलते हैं, जहां आप अपने आप को नर्चर कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं। Then you can cope up with the others. You can manage your lives, and you could be very productive. This is what the definition of, WHO it talks about. So, broadly speaking, the skills that you require to face the challenges of life, they are called life skills. And it is something that relates to your behavioral part. How do you adopt and how do you, react to those resilience, I should say, or reaction of yours to that particular situation? क्या आप कैसे उसको प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं? क्या आप भींगी बिल्ली बन जाते हैं, या आप बहादुर बनते हैं, या फिर आप एक मूक दर्शक की भांति रहना चाहिए? तो हमको लाइफ स्किल बतलाती है कि हमको क्या करना चाहिए, what to do and what not to do, कि हम क्या करें और क्या ना करें। एक हमारे यहाँ उक्ति हमारे यहाँ बड़ी सामान्य भाषा में कही गई है, और आज लोग उसको मार्केटिंग का रूप लेकर बोलते हैं कि भाई हमें स्किल्स प्राप्त करना है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ तो बृहदारण्यक उपनिषद में यह सिंपल तरीके से कह दिया गया है, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतगमय ओम शांति शांति शांति। कि भाई मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। यदि मैं मोर्टल हूं, मैं मानव हूं, तो मुझे अमृता प्रदान करो। इसलिए हमारे को 4 ब्रह्म सत्य हैं। अमृतस्य पुत्रम, हम अमृत पुत्र हैं। हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, हमें स्किल्स है, हम ब्रह्मास्मि, हमारी बात। माने यदि मेरा ब्रह्म का अंश है तो मैं उस ईश्वर को रिफ्लेक्ट करता हूं जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। और वो किस स्किल्ड से बनाया, आप देख ही रहे हो, झरने हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं। तो ये ईश्वर तो सबसे बड़ा शिल्पकार है, और उसी का अंश आप हैं। आप सारे जो यहाँ पर हैं, जो बाहर हैं, यहाँ पर नहीं बैठे तो भी हैं। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म का अंश। तो वो स्किल्स तो हमें इनहेरिटेड है, वंशानुगत है, हम उसको पहचाने। ये मेरे ख्याल से मेरे इस पूरे लेक्चर का उद्देश्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई समस्या, कोई प्रश्न, आपका जिज्ञासा हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। Shall I go ahead? Dubey ji? Yes, sir. Very Yes, good. Sir, I request to you, sir, kindly share your PPT in full screen, sir, if Okay, possible, I sir. think it is some problem. Okay, now I can share. No problem. Okay, No sir. problem. Oh, No, yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. no problem. No problem. Yes. No issues. I'm at your command, my dear Dubey ji. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay. तो भाई ये 21st सेंचुरी है। इसमें मैं फिर कह रहा हूं, दर्शन के रूप से देखा जाए तो भारतीय दर्शन कि मेरा विश्वविद्यालय वही काम करता है। We work in the Indology, Indic studies. Though I am I'm a student of language and literature, English is such, but language is only medium through which you communicate. So when you talk in terms of, Western world, they categorize skills into 3 categories. They call it 21st century skills. भाई हमारे यहाँ तो स्किल्स तो बचपन में हमारे अभिमन्यु को हो गई थी, माँ के गर्भ में ही। बताइए, चक्रभेदन की वो स्किल नहीं है क्या? पर हम जब दृष्टिकोण अपना देखते हैं और पाश्चात्य की ओर जाते हैं तो पहले मैं आपका उसको डीकॉलोनाइज कर दूं। औपनिवेशवाद से जो आपका माइंड है ना, उसको पहले एक बार समझा दूं कि आप क्या समझते हैं और आप में है वो स्किल्स, योग्यता है जो आपको पहचानना है। यू आर ओनली सफरिंग फ्रॉम अ सिंड्रोम। वो सिंड्रोम वही जो एक बार हनुमान जी को हुआ था।
जब वो उस समुद्र तट के यहाँ बैठे हुए थे और उनको लांघना था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इतना बड़ा समुद्र कैसे लांघूंगा। तो उनकी शक्ति अंतर की जो बात कही थी ना, अंदर और बाहर, बाहर तो लंका जाना था, अंदर अंदर मन की लंका हो रही थी कि भाई मैं कैसे क्रॉस करूंगा इस ओशन को। तो हम सबकी स्थिति वही है, और वो स्किल्स हमको क्या करती है, उन सिंड्रोम से मुक्ति दिलाती है। हनुमान सिंड्रोम भी कह सकते हैं इसको। फिर हम अर्जुन सिंड्रोम की बात करेंगे आगे। तो 21st century skills are learning skills, literacy skills, life skills, because we need to have, our knowledge first of all about these skills that we need to grow. Then these are the skills you can see at a glance: critical thinking, creativity, collaborate yourself with others, team members, and you have to be good at communication. मैं रुकना चाहूंगा, हमको यह सिखाया जाता है कि भाई कम्युनिकेशन तो अंग्रेजी में होगा, नहीं. If you are good at Hindi and you are very good in expressing your ideas or your feelings, emotions, you are a good communicator. आपके पास इतिहास गवाह है कि हिंदी वाले वक्ता भी बहुत अच्छे रहे हैं, अंग्रेजी के तो हमने भारत में बहुत कम सुने होंगे. हमने न्यूज रीडर्स को सुना होगा, 2-3 हमने शशि थरूर सरीके को सुना होगा, या फिर हमने हिंदी मोदी जी को सुना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना है. They are really good orators. Obama was a good orator, undoubtedly. तो हम ओरेटर्स को सुनते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनकी भाषा, वो तो उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, हमारी भी हिंदी है, but we are good at communication. We can share our feelings. ये 4 स्किल्स बड़ी महत्वपूर्ण है, लर्निंग स्किल्स. ये लर्न करते हैं हम. हमारे यहाँ तो श्रुति परंपरा रही है, भारत की वैदिक कालीन परंपरा है भाई. भारत का इतिहास, ये कोई इतिहास ईसा पूर्व चालू थोड़ी होता है, सनातन काल. और उसमें तो हमने हमारे श्रुति परंपरा से, हमने गुरुकुल में बच्चा क्या करता था, आप भी सब देखिए, सुनता था, लिखने का तो पता नहीं था उसको. सारे चारों वेद, उपनिषद, सारी चीजें, पुराण सारे याद हो गए थे. श्रुति परंपरा थी, सुनने की परंपरा थी, श्रवण परंपरा थी. ये तो स्किल्स हमने बनाई है, और उनको भी लर्निंग कर दिया कि सीखिए, आप लिख लिख कर कॉपी पे नोट्स बनाकर सीखिए. चलिए आगे बात करेंगे इस बारे में और हम. तो लर्निंग स्किल्स 4 प्रकार की हम कहते हैं. फर्स्ट क्रिएटिविटी होती है, so that you can have new ideas, new connections, new concepts, innovative solutions to the problems. This is called creativity. अभी आप देखिए व्हाट्सएप पे हम दिन भर देखते हैं, वो नए नए कुछ बच्चे गैजेट्स बनाते हैं, नए नए. आप मैकेनिकल इंजीनियर मोहित जी हैं, जानते हैं? वो आप यहाँ MIT है, उनकी एक मून बग्गी रेस होती है, उसमें बच्चे जाते हैं, हाई स्कूल और कॉलेज लेवल के भी जाते हैं. किस तरह का इनोवेशन करते हैं वो देखिए आप. छोटे से आइडिया को लीजिए. एक बच्चा था, उसने पानी फिल्टर करने का छोटा सा यंत्र को उसने प्रचार किया. केवल जब बड़े बड़े हम वाटर फिल्टर देखते हैं, हम देखते हैं हमारा RO देखते हैं, UV देखते हैं, उसने एक नल के अंदर ही लगाने वाला लगा दिया यंत्र. आप देखिए ये एक न्यू कंसेप्ट. अब आप देख रहे हैं कि वो ये आपके मोबाइल बंद हो जाएंगे, हाथ पर गूगल का एक बेल्ट आ गया है. तो ये सारी चीजें क्या है, क्रिएटिविटी है. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी. यू हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस बॉक्स. जो आपका बॉक्स है इसके बाहर करना है. Then you have to be very critical, in analyzing any information. You should not be biased. Bias मत होइए, पक्षपात रहित होकर क्रिटिकल रूप से सोचिए, इसका एनालिसिस हो सकता है पॉजिटिव वे में जाकर. And you have to communicate so that you could understand and make others to understand. 2 चीजें हैं भाई कम्युनिकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं करता. बहुत सीधा साधा है, आपको लोग समझे, आप लोगों को समझे, यही तो है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस. एक्सप्रेस करिए, शेयर करिए, मिलिए. ये सारे सोशल गैजेट्स आपको यही कहते हैं. देन कोलैबोरेट. इट्स अ टीम वर्क दैट विल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे. आप जितना कोलैबोरेट करेंगे, लोगों के साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे. अब एकला चलो वाला काम नहीं है. यदि एकला है तो आप लीडर के रूप में हो सकते हैं. लीडर को भी टीम की जरूरत होती है. कभी क्रिकेट मैच में एक आदमी नहीं जीत सकता. बैटिंग भी चाहिए, बॉलिंग भी चाहिए, फील्डिंग भी चाहिए, ऑलराउंडर्स भी चाहिए.
collaborate yourself, develop team making, team building skills. आपके देखिए ना, डीन साहब हैं आपके, मोहित जी, पूरी टीम है इनकी ये एफडीपी को कराने की। यदि ये टीम नहीं होगी, दुबई जी नहीं होते इसमें, हमारे भाई दुबई जी हैं इसमें, मोहित जी हैं, ऊपर उनके डीन साहब हैं, उनके ऊपर वीसी साहब हैं, फिर प्रो वीसी है, फिर वीसी है, फिर चांसलर लोग, पूरी टीम है एक तरह से देखा जाए। जब आपके सामने ये आज एफडीपी हो रहा है, तो टीम तो हर जगह चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। अकेले में आप केवल आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, डेजर्टेड फील कर सकते हैं, एंजाइटी इंक्रीज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कोलैबोरेट विद अदर्स। सो ये 4 C's है, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। थ्रू दैट यू कैन डेवलप लर्निंग स्किल्स। अब आती है लिटरेसी स्किल, जिसको हम डिजिटल स्किल्स कहते हैं आज की तारीख में। हमारे यहाँ तो लिटरेचर में डिजिटल लिटरेसी थ्योरी भी होती है, डिजिटल लिटरेरी थ्योरीज भी होती है, जो आ गई नहीं है, जो सोशल मीडिया और जो मीडिया इंफॉर्मेशन मीडिया के गजेट्स हैं उनसे आती है। तो इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है, आप देखिए मीडिया आजकल हावी है, टेक्नोलॉजी उस पर डोमिनेट करती है। तो किस तरह से तीनों को हम साथ में लेकर चलें, हम अपने आप को देखें कि हम कहां से इंफॉर्मेशन लें, उसको आइडेंटिफाई करें, लोकेट करें, इवेल्युएट करें और इफेक्टिवली यूज करें। अब ये दुनिया संचार से भरी है। यू टेक द मैसेजेस व्हिच आर यूजफुल, डू नॉट पे अटेंशन टू द मैसेजेस व्हिच आर लेस यूजफुल, व्हिच आर ऑफ नो यूज, दे आर sheer piece of garbage, leave them up, छोड़ दीजिए। मीडिया लिटरेसी, so that you can understand mass media। अब देखिए वायरल हो रहा है ये न्यूज, अब कुछ भी करते हैं, जरा सा भी आप बोलते हैं, करते हैं, लोग वायरल कर देते हैं। ये मीडिया को पहचानी है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी है। अभी आपने मुझे बोला दुबे जी ने कि सर आपका वो हमको दिख नहीं रही है स्लाइड्स, तो मुझे भी F5 दबाना नहीं आता, मुझे नहीं मालूम होता, मैंने भी आप लोगों से ही सीखा है सबसे। तो हो सकता है कि मैं आप तक उस रूप में नहीं आ पाता जिस रूप में आप लोग मुझे देखना चाह रहे थे पूरी स्लाइड्स। तो आप देखिए आज सारे टीचर्स, सारे आप लोग भी, हमने 1 साल पहले ना ये हमने जूम का नाम सुना था, ना हमने वेबएक्स का नाम सुना था, ना हमने और बाकी गूगल मीट का नाम सुना था। थ्रू आवर मोबाइल्स वी आर यूजिंग ऑल दीज गैजेट्स। ग्लोबल लिटरेसी हो गई है इसमें, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो चुका है लिटरेसी के साथ। कंप्यूटर लिटरेसी भी आपको आना जरूरी है। अब ये न्यू मीडिया लिटरेसी जो है, डिजिटल मीडियम से इंटरनेट को क्लब कर लेता है, हाइपर टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के मीडियम आते हैं। वी नीड टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज मोड ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट वी कुड बी लिटरेट, not traditionally but also digitally. This is the updatation of your skill. This is called the updatation. This is called the assimilation. This is called adaptation of new skills that you learn. Therefore these are learning skills, part of extended version of skills. Then of course the topic that I have chosen for my lecture, rather the organizing committee, they have chosen this particular topic so that I could deliver my lecture on it. So you have the life skills. These are flexible, that helps you to be a good leader, so that you can take some new initiatives, you could be productive, and you could club yourself to the social endeavors. यही skills जो जिंदगी को जीने की skills कहलाने लगी है। आप फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब नहीं कि आप बहुत झुक गए हो, रिजिड ना हो, एरोगेंट ना हो, लीडर के रूप में डेमोक्रेटिक लीडर हो, ऑटोक्रेटिक ना हो, इनिशिएटिव्स लें पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ना हो, डरे नहीं, सिंड्रोम से बचे। हनुमान या अर्जुन सिंड्रोम, अर्जुन के पास सिंड्रोम आया एक बार महाभारत के, आपने देखा होगा भगवत गीता के उपदेश में, कि वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, पूछ रहे हैं मैं अपने भाई बहन यही मेरे लोग, कैसे इनसे मैं 2-2 हाथ कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने पूरा संदेश दिया जो भगवत गीता के रूप में 18 अध्याय है। यदि बोलूंगा तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। आप सब जानते हैं, सब सुधी लोग हैं यहाँ पर, सब अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग, कि भाई आपको तो ये इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा।
ये कर्म है आपका। ये आप नहीं भी करोगे तो ये तो काल को जाएंगे, ये काल कौलित होंगे, क्योंकि मैन इज मॉर्टल। तो तुम्हारे हाथ से ही इनका मोक्ष प्राप्त होगा, तुम डरो मत। यदि आपने अधर्म, तो धर्मो रक्षति रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म की रक्षा करना ही रक्षा है। अधर्म को आपको उसकी जो नियत की है उस तक पहुंचाना आपका यही धर्म है। धर्म हमारे यहाँ हम अंग्रेजी में समझने लग गए, रिलीजन, वही वाली बात। धर्म क्या है? धर्म धारे, धर्म को धारण करना चाहिए, धर्म धारण करने की चीज। चलिए अभी आप इस लाइफ स्किल्स में ही चलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, ये आप जो भी करते हैं उसका कोई आउटकम निकलता, और वो सोशल एट लार्ज। आप देखिए CSR है इसके लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक एक करके इन सारी स्किल्स को हम समझ लेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए भाई, आप समझिए, एनालाइज करिए और एडजस्टमेंट करिए। आप देखिए ना, क्लास में जब एक टेबल पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। अभी तो कोरोना, अभी तो 6 फीट की दूरी रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम आ गया है। परंतु यदि हम एक आदर्श स्थिति की देखते हैं सॉरी, तो हम देखते हैं कि हमारा गोल हमारे माइंड में, हम उससे कभी भी डिविएट नहीं होंगे, हम उसी तरह रहें जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती थी, मछली के बाद बाकी अंग प्रत्यंग नहीं दिखते थे, इसलिए उसने निशाना वो नीचे देखकर भी लगा पाया। वो भी एक धनुर्विद्या हमारे स्किल कही गई है। ये सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एग्जांपल्स कितने दे सकता हूँ, आप खुद स्वयं इन एग्जांपल्स को जानते हो। वही आप देखिए एकलव्य है, वो केवल उस गुरु को मानकर अपनी स्किल्स को देखता है, और देखिए अपना जो अंगूठा वो भी दे देता है गुरु दक्षिणा में, तो भी वो एकलव्य इतना धनुधारी और इतना प्रकांड था कि वो उससे कर्ण, अर्जुन सरी के योद्धा भी उससे डरने लगे। ये है स्किल्स। गुरु उससे गुरु दक्षिणा में अंगूठा, जान पूरी कहानी है। चलिए तो हम आगे बढ़ते, इनिशिएटिव्स लें, हम खुद आगे बढ़े। आपसे मैंने पूछा कि क्वेश्चन पूछिए, हाँ मैं पूछता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई विल लाइक टू रिजॉल्व दैट, और हम हमारे गोल तक पहुंचे, हमारे प्लान को इनेक्ट करें। हमारी सोशल स्किल्स होती है, हम कोलैबोरेट करें, एक दूसरे से मिलें, पहचान बनाएं। फिर हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्ट अपना बढ़ाएं, हम प्रोडक्ट बढ़ाएं, हम प्लानिंग करें, टाइम मैनेजमेंट करें, रिसर्च डेवलपमेंट करें, इवैल्यूएशन करें, रिवीजन करें, एप्लीकेशन करें, और फाइनली हम एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे जो जनप्रिय हो। जनप्रिय का मतलब यहाँ पर कोई जनता से चुनाव करके नहीं आना, जिसमें सारी स्किल्स हो, जो टीम को साथ लेके चल सके, कोलैबोरेट कर सके, फ्लेक्सिबल रह सके और प्रोडक्टिविटी कर सके। जो आपके गुरुजी हैं, जो आपके because I don't think I will be able to share my screen or not, but whatever it may be, let me go ahead. Yes, sir. I was Yes, sir. talking about WHO's critical life skills. Okay. When you have WHO, that means in 1999, World Health Organization, what they have done, they have given us, they have rather identified 6 key areas of life skills. उन्होंने 6 एरिया अपने लाइफ स्किल्स के निकाले। एक तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल है वो बहुत जरूरी है। दूसरा कहा कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी चीजें सोचते हैं तो क्रिएटिविटी होना चाहिए। You should have creativity, a touch of creativity should be there, innovative ideas should be there. You should be able to assess the information carefully, and you should understand its relevance also. And then you have to be aware about the self. And this is called, I think, the most important aspect of life skills. Be aware about yourself. अपने आप को जानो. Who am I? Therefore I told you, I'm Brahmasmi. मैं क्या हूं? भाई मैं एक ब्रह्म का अंश हूं. मैं एक ब्रह्म का अंश हूं. I am Brahmasmi. So when you are able to know about your, strength, potentials, the latent skills, then you will be able to cope up with the situation. You will be able to conquer all the challenges or whatever, problems you have to encounter in your life. And empathetic you have to be. Empathy you have to develop, not sympathy. This is something which is very derogative term.
You have to be, develop empathy. That means you have to understand what others they say, what others they are sharing with you. And you have to develop self-control, self-restraint. अपने आप को स्व नियंत्रित करें. इसलिए हमारे कहा गया है कि हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. कंट्रोल करिए आप. जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आपका मन, वचन, कर्म, इन पर नियंत्रण होना चाहिए. हम कुछ भी बोल देते हैं, कहीं कुछ भी बात कर देते हैं, किसी को भला बुरा कह देते हैं. इनको हम सोचें, समझें. आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स. हमारा ह्यूमन ब्रेन है. वी आर नॉट एनिमल्स. जब हमको ईश्वर ने इतनी सुंदर कृति बनाया है, तो हम सुंदरता से इस दुनिया को देखने का एक संकल्प साधे. Then you have to be develop what? Resilience and ability to cope up with the problems. कि आप अपने आप को देखिए, जो भी सेटबैक होता है लाइफ में. आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत सरी के एक युवा अभिनेता को भी सुसाइडल अटेम्प्ट करना पड़ा और वो आज नहीं रहे. हम घबराए नहीं. चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. मोर चैलेंजेस, योर लाइफ विल बी मोर हैपनिंग वन. हमारे बड़े सिने अभिनेता हैं, आपके भी आदर्श होंगे, अमिताभ बच्चन. वो तो कहते हैं जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो जीवन है. जब संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है. देयर इज नो लाइफ इफ देयर इज नो स्ट्राइफ, देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ. लेट द स्ट्रगल कम्स. हम तो कहते हैं, हमारे यहां तो परंपरा है भाई कि लेट द नॉलेज कम, नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द 10 डायरेक्शंस. कि 10 दिशाएं, हम 4 दिशा की बात नहीं करते भारतीय लोग, भारतीय परंपरा में 10 दिशाओं से अच्छे विचार आने दीजिए. और अच्छे विचार ही हमको इन बुरे विचारों का खात्मा करने में, बुरे विचारों का रावण का खात्मा करने में फायदा दिलाए. तो अब हम पूछते हैं हम अपने आप से कि साहब ये लाइफ स्किल्स आपने हमको दे दी, हमने इनको सीख लिया, डिसीजन मेकिंग स्किल कर ली, सेल्फ अवेयर हो गए, सेल्फ कंट्रोल हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, तो इनका फायदा क्या होगा? तो विद्यार्थियों, you will be able to gain certain benefits out of these skills. They may be personal or professional benefits. You will be able to cope up with the others. You may be able to recognize your strengths and weaknesses. You can do your SWOT analysis. SWOT analysis कर सकते हो. आपका strengths आप measure कर सकते हो, आपकी weaknesses measure कर सकते हो, आप opportunities को encash कर सकते हो, and threats को आप measure करके, analyze करके overcome कर सकते हो. फिर हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली आप यू मे बी फिट. देयर विल बी नो हेल्थ इश्यूज. एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं. आप अपने एजुकेशनल जो अचीवमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो एस्पायर करते हो, यदि आप रिजल्ट करते हो, तो यू मे बी एबल टू अचीव ऑल दोज एजुकेशनल बेनिफिट्स. यू कैन रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. और सोशल बेनिफिट्स हैं. समाज में आपका एक स्थान बनता है. ये स्किल से आप समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं. इकोनॉमिक रूप से भी आप अपने आप को संपन्न करते हैं. पॉलिटिकल रूप से भी आप देखेंगे, कोई भी कंट्री है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें स्किल्स को यदि डोमिनेट किया जाता है, तो हम स्किलफुल लोगों को हम उसमें देखते हैं, वो आते हैं राजनीति के प्रदेश. अनस्किल्ड पहले ही बाहर हो जाते हैं. कल्चरल बेनिफिट्स है, वो देश का कल्चर बढ़ता है. यहाँ पर इस तरह के स्किलफुल लोग होने से उसके कल्चर को ग्लोरिफिकेशन मिलता है. आप देखिए ना, भारत सोने की चिड़िया कहलाता है. इसके निवासियों के कारण, इसकी विरासत के कारण, इसमें यहाँ के लोगों में दक्षता थी. नालंदा, तक्षशिला, ये क्या है? ये वो विश्वविद्यालय है जो आज के हमारे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, MIT आपका हुआ, इनसे कहीं गुना बेहतर थे. पूरे वर्ल्ड के हमारे विद्यार्थी आते थे. चलिए आप इंदौर से पास उज्जैन आइए. लॉर्ड हमारे यहाँ सांदीपनी, जिनको कहा गया गुरु सांदीपनी है, वह विश्व के गुरु जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, कृष्ण भगवान, उनको शिक्षा देने वाले सांदीपनी का आश्रम उज्जैन में. तो देखिए वहां पर वो सारी विद्याएं सिखाई जाती थी जो कृष्ण ने उसी आश्रम में सीखी है. कभी जाइए, देखिए, वो कुंड है अभी भी. तो ये सब कलाएं हमारे यहाँ, तो 64 कलाओं की बात करते हैं. स्किल्स हमारे पूर्व से रही है. मैं वो बात करने आ रहा हूं आपसे. तो हम इस तरह से कल्चरल रूप से भी हमारी स्किल्स को आगे लेकर हमारे कल्चर को ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं. उसका ग्लोरिफिकेशन, हम उसको ग्लोरीफाइड कर सकते हैं.
फिर अभी कैसे डेवलप करें, बड़ा चिंता का, पहले यहाँ पर हेडेक हो गया, ये स्कूल सर बोलते हैं मैं कैसे डेवलप करूं, हाउ आई वुड बी एबल टू इनकलकेट इम्बाइब। पहले आप ये बनाइए विल टू लर्न, इच्छा शक्ति होना चाहिए, जिजीविषा होना चाहिए। जब हम देखते हैं 80 साल का 90 साल के बुजुर्ग हमारे इस नए विश्व में हमारे साथ चल रहे हैं आगे, आप देखिए मिल्खा सिंह को मैं देखता हूं, आगे के लोगों को देखता हूं, तो सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े महापुरुष उनको देखता हूं, वो अपनी एज में भी थकते नहीं है, रुकते नहीं है, रुकना उनका काम नहीं है, चलना उनका काम, चरे वेती प्रचलाम निरंतर, चलते रहना, यही जीवन का उद्देश्य। तो विल टू लर्न करिए, विलिंगनेस टू लर्न इज द मार्क ऑफ यूथफुल माइंड। चलते रहिए, मत बचिए, मत थमिए, उस नन्ही चींटी से सीखिए जो कितनी बाधाएं आती हैं। अभी आंधी तूफान चल रहे हैं भाई, उज्जैन इंदौर मालवा पूरा भोपाल तक है, मैं यहाँ तक, मैं जहाँ विदिशा में हूँ, सांची में हूँ, यहाँ पर भी आंधी तूफान, पर चींटी अपने पथ से नहीं लगती है। हम भली एक जगह पर, नन्हा सा कीड़ा भी अपनी गति को नहीं रोकता है, तो हम तो इंसान हैं। तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं हम क्या डेवलप करना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। ये एजुकेटेड माइंड का हमारा पहला लक्ष्य है। अरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि हम कोई भी चीज को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करें कि मैंने बोला सही है, उसको कसौटी पे परखें। सुनार भी यही करता है, आप सोना बेचने जाते हैं, लेने आते हैं, तब कसौटी पर उसको परखिए अपने आप को, रस्सी आवत जावत पत्थर पर होत निशान। भाई बार बार आप प्रयास करते हैं, बार बार, तो आप देखिए पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं, पानी से भी निशान हो जाते हैं, रस्सी से भी निशान हो जाते हैं। जब पत्थर से इंसान बीच में से मार्ग निकालकर गुफा कंदराओं से रेलवे के पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो ये सारे काम हम लोगों ने करे, इंसान ने। तो क्रिटिकल सोचिए, कोई भी चीज को ऐसे रिजेक्ट और एक्सेप्ट ना करें। ये एजुकेटेड है आप, यू आर हाईली एजुकेटेड माय डियर स्टूडेंट्स। फिर सेल्फ अवेयर हो, जब आप ये जान जाओगे, व्हेन आई डिस्कवर हु आई एम आई विल बी फ्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक नॉवेल है इनविजिबल मैन, कभी पढ़िए, वो राल्फ एलिसन कहते हैं उस नॉवेल में, व्हेन आई डिस्कवर हु आई एम आई विल बी फ्री। जिस दिन मैं जान लूंगा कि मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगा, डिटेच हो जाऊंगा लाइफ से, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपको जीवन में जानना नहीं बचेगा। यही तो हम बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहते हैं। इसलिए चलिए बुद्ध की ओर, बुद्ध हैं, हम बुद्धू हैं, ये बुद्धू से बुद्ध बनने का मार्ग, हम बुद्धू हैं और अब बुद्ध बनने का मार्ग। वो मार्ग कहाँ है? वो यही मार्ग है। ये हम सेल्फ अवेयर होंगे, फिर हम स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस बड़ा कठिन वर्ड है, ये होमवर्क का, असाइनमेंट का, ये ऑनलाइन क्लासेस का कितना स्ट्रेस है। मोहित सर ने कितना स्ट्रेस दिया कि आपको आना है, नहीं आओ, नहीं मोहित सर नहीं देते, आप ले ही नहीं तो देंगे नहीं, वो देते भी नहीं। मोहित सर तो वैसे भी स्ट्रेस, बड़े अच्छे मधुर वक्ता है, बड़े दुबे जी मधुर वक्ता है। तो एक संस्कृत में उक्ति है, चितायाश बिंदु मात्रम विशिष्यते चीता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम। एक बिंदु का अंतर है चीता और चिंता में। तो बिंदु यदि आप अपने दिमाग पर लगा लेंगे तो वो चिंता चीता की ओर ले जाएगी, वो हटा दे तो चीता बन जाएगी चिंता, और वो आपका जीवन जो है वो निर्जीव हो जाएगा। ऐसी भूल ना करें, डिसीजन को लीजिए। अभी से हम सब में ये दिक्कत है, हम मीडियोकर हमारा अप्रोच है, हम डिसीजन लेने में फर्म नहीं है। लीजिए और फर्म रहिए। वेटिंग हर्ट्स करती है, फॉरगेट करना और हर्ट देता है, बट हम जब डिसीजन को ले लेते हैं और डिसीजन वापस पीछे लेते हैं तो ये और पेनफुल। पहले ही आप एनालाइज कर लीजिए कि कितना सही होगा, कितना गलत होगा, फिर लीजिए ना, फिर जाइए ना आगे। Who stops you? फिर एक पर्सनल स्किल्स होती है। तो मैं तो ये बड़े सूत्र हैं हमारे महा ग्रंथों में, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये निंद्रा ज्यादा लेना, आलस्य लेना, डरना, क्रोध करना, ये सब आपको असफल बनाते हैं। लेजीनेस मत रखिए, कल का काम प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, काल करे सो आज कर।
भाई आज करें ना, कल क्यों टालना। मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे महान मनीषी लोग कहते हैं, विद्वान भारत के विद्वजन कहते हैं। ये स्किल्स हैं, ये लाइफ को जीने के तरीके। अगली स्किल्स यदि हम डेवलप करना चाहते हैं तो इमोशनल मैकेनिज्म को बढ़ाएं, इमोशनल स्टेबल हो, छोटी छोटी घटनाओं पे समभाव रखें, स्थित प्रज्ञ हो। एक वर्ड है प्रज्ञा ज्ञान ब्रह्म। भाई आपने यदि ज्ञान को प्राप्त किया है तो आप स्टेबल होंगे। छोटे छोटे दुख में, छोटे छोटे खुशी में ना तो ज्यादा खुश होंगे ना दुखी होंगे। समभाव समदृष्टि से दुनिया को देखेंगे। मोहित जी मैं सही हूं या गलत हूं? हम समभाव से दुनिया को देखना चाहिए कि नहीं? सही है सर। तो भाई हमारे यहां तो कहा गया है योग चित्तवृत्ति निरोध। योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राजयोग करते हैं, जिससे हम ऐसी चीजों का निरोध करें, उनको अवरोध करें जो हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे मानसिकता में, हमारे निगेटिव माइंडसेट को डेवलप करता है, उसको रोकना चाहते, रेस्ट्रेन करिए। फिर आप क्रिएटिविटी रखिए, रोज कुछ नया सीखने की जज्बा रखिए, कुछ मैं नया करूंगा। आप यदि आपके आइडल देखिए, कोई फिल्मी हीरो है, आप देखिए वो नया कुछ करता है, नए रोल को लेता है। चैलेंजेस को डरिए मत, स्वीकार करिए। आप देखिए क्रिकेट में, देखिए हेलीकॉप्टर शॉट हमारे धोनी जी ने नया इजाद किया। तो ये तो नया करना पड़ेगा भाई, आपको क्रिएटिव करना पड़ेगा इस दुनिया में। आप नहीं करेंगे तो दुनिया आपको फोर्स करेगी। तो बजाय आप खुद सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ कंट्रोल के साथ, फिर आपको सोल्व प्रॉब्लम्स होना चाहिए। प्रॉब्लम्स नेवर एंडिंग है लाइफ में, ध्यान रखिए। समस्या का अंत नहीं है, पर ऐसा भी नहीं हल नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट इट्स ओन सॉल्यूशन। हर समस्या का हल अपनी उस समस्या में ही है। दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदले, सृष्टि बदलेगी। यही लाइफ स्किल्स है। फिर मैं सीखता हूं, मोहित जी से सीखता हूं। सुबह बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि हमारे मंत्री महोदय आए थे उच्च शिक्षा में, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं हमारे वेद, अथर्ववेद में क्या बोला है? वाचा वदामि मधुमद भूयास मधु संदृश्य, कि आपके वचनों में मीठापन होना चाहिए, शहदपन होना चाहिए, शहद गुला होना चाहिए कम्युनिकेशन जब आप करें। फिर पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग आप कभी भी अपने कम्युनिकेशन में ना रखें। एम्पैथी रखें, सिंपैथी भले ना रखें, एम्पैथी जरूर रखें। लोगों को सुनने का प्रयास करें। स्टडी स्किल्स भी आ गई है। देखिए आजकल ऐसा नहीं कि आपने गूगल में देखा और आपने तत्काल डाला हो गया। नहीं, पढ़िए खूब। रोज 50 पेजेस पढ़ने की आदत डालिए। किंडल से पढ़िए, बुक से पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, डिजिटल पढ़िए, डिफरेंट वैरायटीज का पढ़िए, रीड एंड राइट को इंप्रूव करिए। फिर निगोशिएशन भी सीखिए। कोई भी दुनिया में आपको सोने की तश्तरी में खाना या चांदी की तश्तरी में नहीं परोसेगा, न दुबे जी, न मोहित जी, न मेहता साहब। आपको स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करने की कला आना चाहिए। आप किस तरह निगोशिएट करते हैं। फिर रिलेशनशिप डेवलप करिए। ह्यूमन बीइंग्स हैं हम। हमको कहा जाता है वी आर सोशल एनिमल्स। हम सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते। आप देखिए लॉकडाउन में आप रह पाए क्या? आप जैसे ही खुला लॉकडाउन, आपने कहा नहीं कॉलेज खुलना चाहिए, यूनिवर्सिटीज खुलना चाहिए, हमको आना चाहिए। वी वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर बिकॉज वी वांट टू डेवलप, वी वांट टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये स्किल्स आप डेवलप करें। चलिए अब वैदिक काल में लाइफ स्किल्स क्या थी? तो एंशिएंट आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, गुरुकुल में गुरु अपने विद्यार्थियों को साथ में रहकर, जो मैंने श्लोक शुरू में बोला ओम सनावतु, वो उस तरह साथ साथ पढ़ते लिखते और बढ़ते थे। तो वेद की शिक्षा थी, ब्राह्मण थे, उपनिषद थे, धर्मसूत्र थे। आप देखिए मैत्रेयी उपनिषद को मैं लेना चाहूंगा। वो बतलाता है कि सुप्रीम नॉलेज वो क्या है। वो आता है विद्या से, वो चिंतन है, उसमें तपस है, तप है, ऑस्टेरिटी। तो हम कैसे प्राप्त करें भाई ये ज्ञान होता है इंट्रोस्पेक्शन से। आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन करें, आत्म विश्लेषण करें। आत्मचिंतन ज्यादा नहीं करना, तो दिन भर चिंता में रहेंगे कि साहब मेरे को यहां दुख रहा है, यहां हो रहा है। आत्म विश्लेषण करें, और यही आप अपने आप को गुडनेस की ओर ले पाएंगे। सत्व गुण, देखिए 3 गुण होते हैं भगवत गीता के, सत्व, रजस और तमस। तो आप में सात्विकता होना चाहिए। राजा के गुण तो राजा में अच्छे लगते हैं, सुशोभित होते हैं।
तामस हमको मनना नहीं है, रावण नहीं मनना, कंस नहीं मनना। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको एक चीज और लगती है, हम आगे बढ़कर देखते हैं कि ये जो लाइफ स्किल्स के कुछ सूत्र हैं जो विष्णु पुराण में, वो तो कहता है, विष्णु पुराण का एक श्लोक है, सा विद्या मुक्त, विद्या ही प्राप्त कर ले, पूरे दुनिया के सारे कर्मों के बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे, आप ज्ञान ब्रह्म हो जाएंगे। तो आप इस तरह का अध्ययन अध्यापन करें जिससे हम तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या विमुक्त, विष्णु पुराण का ये बड़ा प्रमुख ध्येय वाक्य। फिर भगवत गीता कहती न ही ज्ञानी न सतशम पवित्र में ही विद्यते, अध्याय 4 में 38 नंबर का सूत्र है कि भाई ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। जो हमें ज्ञान को प्राप्त करने की ललक लालसा होना चाहिए, लालसा गलत चीजों में भी हो सकती है, लालसा ज्ञान में है तो सही। फिर मैं आपसे क्या बोलूं, मैं क्या आपको कौशलता सिखाऊंगा, मैं क्या स्किल सिखाऊंगा, आपकी भगवत गीता आपको जो उनका अध्याय 2 है श्लोक 50 है, वहां तो साफ ही कहा गया है, बहुत अच्छे रूप में कहा गया है, योग कर्मेषु कौशलम। भाई योग ही कर्म है, योग से आप कौशलता प्राप्त करते हैं। मेडिटेटिव माइंड होना चाहिए, मेडिटेशन, ध्यान, कंसंट्रेट। ये आपको कोई लाइफ स्किल्स कोच होते हैं आजकल, कोई जरूरत नहीं है। आप भगवत गीता पढ़िए, योग कर्मेषु कौशलम। देखिए कितना अच्छा सिखाया कि योग ध्यान केंद्रित कोई भी चीज करें तो आपकी वही कुशलता है। और संस्कृत में सुभाषितानी भी, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चतुर्विधिर्धम, कि आंखों से, मन से, बोलने से और हमारी कर्मेंद्रियों से, इनसे हम ये चारों चीजों से निपुण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। इनमें कहीं भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हम बोले, जो हम सुने, जो हम देखें, तो ये यही कुशलता है, यही स्किल से आपको डेवलप करना है। तो आप देखिए भगवत गीता क्या कहती है कि आप वर्चुअल नॉलेज डेवलप करें, आप अपनी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को मॉडिफाई करें, आप एडजस्ट करें, इंडिविजुअल अपने सोशल एम रखें, इंटरनल कॉन्शियसनेस डेवलप करें, स्व केंद्रित कॉन्शियसनेस डेवलप करें, आत्म केंद्रित ना हो, पूरे भाई जगत को साथ लेके चले। आप इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करें, आप ड्यूटीज को समझें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई आपका कर्म, आपका जीवन का कर्म ही करना, आपका कर्म प्रधान था। ये कर्म प्रधान राष्ट्र है, इसमें कहा भी गया है राष्ट्र जागृयाम वयम्। भाई आप जगेंगे, राष्ट्र जगेगा। आप यदि अपने आप को उन्नत करेंगे, आपका समाज उन्नति करेगा, परिवार करेगा, राष्ट्र उन्नति करेगा। तो भाई 2 प्रकार के नॉलेज हो गए ना, फिजिकल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और ये दैहिक भौतिक। आप सभी प्रकार का नॉलेज गेन करें। ये आपको लर्निंग लाइफ स्किल्स की सीखने की कला कैसे आएगी? कन्वर्सेशनल, लोगों से मिले, बातचीत करें, क्वेश्चन आंसर करें। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप प्रश्न करें, जिज्ञासा करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, प्रदर्शन करें, बातचीत करें, दिखाएं, लोगों से मिलेंगे। फिर आप एनालिसिस करें और लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखें। बार बार आप करेंगे कोई चीज, अभ्यास तो रिइंफोर्स होगा, उससे आपका योग्यता निपुण होगी। अब भाई हम बात कर रहे हैं इस एफडीपी की, और यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, उद्यमिता लोगों वाले की बात कर रहे हैं। उनको कौन कौन सी लाइफ स्किल चाहिए? भाई उन लोगों को चाहिए रहती है, यदि आप बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, तो ये स्किल्स को आप डेवलप करिए। क्रिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करें, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करें। मैं इनके बारे में आपको काफी विस्तार से बताया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, टीम बिल्डिंग करें, डिजिटल लिटरेसी स्किल डेवलप करें, फ्लेक्सिबल रहें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, टाइम मैनेजमेंट करें। आज आपको ये टाइम था, सुबह 10 बजे सब लोग आ गए थे, आई एम वेरी हैप्पी, आई वाज आल्सो प्रेजेंट। मोहित जी का आदेश था कि आप टाइम पर रहें, तो टाइम मैनेजमेंट करें। लाइफ में टाइम इज मनी, टाइम इज हनी। टाइम चला गया तो कुछ भी नहीं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, सोशल स्किल्स को डेवलप करें। यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड यू हैव टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, healthy relationship with your peers, with your colleagues, with your fellow beings. मैं कुछ उदाहरण दूंगा, फिर अपनी बात को बस अब खत्म करने की ओर अग्रसर होगा कि भाई हमने कहा कि साहब ये स्किल तो हम रखते हैं, कोई बात नहीं, हम ये स्किल रखेंगे। तो कौन से भारत के ऐसे एंटरप्रेन्योर है? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, हम ये सब जानते हैं। इन्होंने भी मेहनत करी, इन्होंने भी स्किल्स को डेवलप करा है। आप देखिए निरमा वाले हमारे जो भाई थे, वो एक साइकिल पर साबुन का चूरा बेचा करते थे।
बाद में निरमा कंपनी बन गई। आप देखिए आज निरमा राज कर रही। हमारे अंबानी जी का भी आपने देखा होगा, फिल्म गुरु में देखा होगा उनका ऑटोबायोग्राफिकल स्केच। छोटे से ही शुरुआत होती है हमेशा। अडानी का भी यही देख लीजिए, टाटा बिरला का भी देखिए। तो मैं कुछ ऐसे नाम लेना चाहता हूं जो आपने अभी कम जाने। उनमें एक नाम है श्रीधर वेम्बू का। श्रीधर वेम्बू जो सीईओ है जो क्रॉप कॉर्पोरेशन, बड़ी छोटे परिवार से आए, मॉडेस्ट मिडिल क्लास फैमिली है। इनकी फैमिली चेन्नई में रहती थी। उसके फादर स्टेनोग्राफर थे, वो भी हाई कोर्ट में। उसके फादर मदर दोनों कभी कॉलेज नहीं गए, और आज देखते हैं कि श्रीधर वेम्बू सीईओ है। और उनका जो हो सूट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से, कई लोग आप जानते होंगे मेरे से भी ज्यादा। फिर एक आप देखते हैं वेलुमानी। वेलुमानी कौन है? आप 100% गए होंगे थायरो केयर आपने देखा हो, ब्लड टेस्ट करने जाते हैं। उनका कोई कार नहीं है उनके पास, एक बड़े स्मॉल क्वार्टर में रहते हैं, और आप देखिए 1320 करोड़ की कंपनी चलाते हैं, छोटे से स्थान से आए हुए हैं। लाइफ स्किल्स, कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, फिर वही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें उनमें है। खुद का है और भारतीय परंपरा। फिर गुप्ता जी चेयरमैन है, आपने पानी जरूर पिया होगा केंटारो का, नहीं विज्ञापन देखा होगा, हेमा मालिनी जी आती है उसमें। मैकेनिकल इंजीनियर थे हमारे मोहित जी सरीके, 1985 में पास हुए। छोटे से मकान से उन्होंने 20,000 रुपए से अपना धंधा चालू करा, और IOCL में वो जॉब भी करते थे। वो सारा उन्होंने पैसा बचाया, और आप देखिए केंटारो आज तो मेरे घर। फिर आप कैलाश काटकर को देखते हैं जो स्मॉल विलेज में रहीमपुर महाराष्ट्र में हुआ, रहीमपुर, और कैलाश काटकर जो वर्क करते हैं टॉप चेयरमैन बन गए, आज सीईओ है। उनका 200 करोड़ रुपए का बिजनेस है। और वो कौन है आप जानते होंगे, आप क्या कंपनी भी आती होगी, ओरिएंटल में काफी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, और एंटरप्रेन्योर तो आपको मनाने का प्रयास कर ही रहे हैं मोहित भाई और दुबे जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फिर आप किस तरीके के निकले व्यक्ति, PC मुस्तफा उनको देखता हूं मैं, जो कुली के बच्चे हैं, जो कुली सामान उठाते हैं, उनका 100 करोड़ की कंपनी है। आप आश्चर्य करेंगे कंपनी क्या है। कंपनी कुछ नहीं, इडली और डोसा का वो पैक सामान बेचते हैं। हमारे जैसे उज्जैन इंदौर में हम दाल बाटी और खाते हैं ना, ये इसका आप भी बनाकर आटा बेचकर लोग कमा रहे हैं। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे जिसको हम बोलते हैं माइक्रो बिजनेस और मैक्रो बिजनेस वाले और स्मॉल बिजनेस वाले, ये लोग करते हैं। आप भी करिए, अभी यही समय है आपके लिए, दिस इज द राइट टाइम। कई बार होता है लोग कहते हैं कि कोरोना काल है, कोरोना काल और जो आपका कोविड वाला पीरियड है, इट इज द राइट टाइम टू वेंचर, टू जंप इनटू बिजनेस विद ऑल दोस स्किल्स। तो आप PC मुस्तफा की बात करते हैं, 6ठी क्लास में फेल हो गए, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करा, जहां पर आपके त्रिची कहते हैं जिसको NIT सपना रहता कई लोगों का, कैलिकट में जो। फिर बाद में आए मैं बेंगलोर से पढ़ लिए, और उनका बिजनेस है इडली डोसा का, करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, पूरे गल्फ में जाता है इडली डोसा। फिर एक पेट्रिका नारायण है, 30 साल का उनका कैरियर था एज एंटरप्रेन्योर का। आज देखते हैं कि वो मोबाइल कार्ट में मेरीना बीच पर जहां पर सामान बेचती थी, ठेला लगा था। मैरिज फेल हो गई, हस्बैंड से बात में बड़ी मुश्किल से कोप अप करा, काफी उनके 2 बच्चे भी हैं, और सारे हर्डल करके उनका खुद का एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट है आज पेट्रिका नारायण। तो ये आपके पास लाइव एग्जांपल्स है मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। आइए, इट्स नॉट टू लेट, इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती। हमारा तो यूलिसिस एक कविता है टेनिसन, वो कहता है लास्ट में, टू स्ट्राइव टू सीक नॉट टू इल। अभी खत्म नहीं हुआ है जीवन, वो 80-90 साल का हो जाता है कैरेक्टर यूलिसिस। हमको चलना है, चलना है, चलना आगे चलना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोहित जी का भी इशारा मुझे यही कह रहा है कि अब हम अपनी बात को विराम दें, और हम अब यहाँ पर मैं सब सृष्टि के लिए मंत्र का पाठ कर मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, मोहित जी उनकी टीम को, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की और यूनिवर्सिटी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। तो एक संस्कृत में उक्ति है, लोका समस्ता सुखिनो भवन, लेट द एंटायर वर्ल्ड बी हैप्पी। सारा संसार सुखमय रहे, हम सब सुखी रहें। पुनः पुनः आपको सभी को धन्यवाद। मोहित जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Having a very patient listening. Thank you very much, Mehta sir. We have learned a lot from you. मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ आपके लेक्चर से। हम लोगों को इतना हमने कभी ध्यान दिया नहीं था हमारे खुद के ग्रंथों के ऊपर। तो रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर एनलाइटिंग अस विथ योर डीप एंड वेरी प्रिसाइज नॉलेज। थैंक यू वेरी मच सर। एंड
I hope that we will be benefited with your lectures in upcoming futures also. हम सर आपको और परेशान करेंगे भविष्य में. And thank you, sir. It will be my pleasure. Thank you, sir. Participants, now. Shall I leave, Mohit? Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Okay. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much again to the organizing committee Okay. for inviting me, and thank you audience for patience listening. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you.